Okay, hi everyone. So this is day 27 of the अभ्यास सेशन. अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं, न्यू स्टूडेंट्स लाइक अभ्यास सेशन इज बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स 26 फॉर 26 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और इसमें हम टेस्ट सीरीज के अलावा इन एडिशन टू टेस्ट सीरीज we do a weekly task of taking all the current affair articles, questions from the articles, and we try to give you. This is a unique way of practicing prelims examination. यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, तो एक टफ प्रैक्टिस है जो आपको एग्जामिनेशन में एक कॉन्फिडेंस देगी. ठीक है. अब इस आर्टिकल को देखिए, इट टॉक्स अबाउट द AQI. तो हमने इस टॉपिक को लेकर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं एंड ट्राई टू आंसर. वी आस्क्ड स्टूडेंट्स अबाउट द 8 pollutants फॉर द AQI. Then we asked about it includes both short term or long term. So answer was short term only. Okay. Then we have these AQI, right? They have certain thresholds that are derived from National Ambient Air Quality Standard. So ये difference आपको पता होना चाहिए कि AQI क्या है और NAAQS क्या है ना? इसमें आपके 12 pollutants हैं और इसमें आपके 8 pollutants होते हैं. So चार जो pollutants that is different in NAAQS is the benzene, the benzopyrene and arsenic and nickel. तो अगर आपसे 8 pollutants जो AQI में हैं, अगर ये चार में से ऑप्शंस आएंगे तो आपको याद रखना है arsenic and nickel and the benzene, right? These are not there and all 8 are here. ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. फिर ये NAAQS in itself is a important topic, है ना. अब इसको कौन who published this NAAQS? It is CPCB, right? They are notified by CPCB. It's a correct answer. Now CPCB notified NAAQS under the powers given under which act? तो ये एक्ट आपको याद रहना चाहिए. दिस इज एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ एक्ट 1981, है ना. इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम किया. नाउ व्हेन यू सी द सेकंड आर्टिकल, इट टॉक्स अबाउट द व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स वेयर द प्रेशराइज्ड सूट्स. ये एक इंपॉर्टेंट है. अब आपको देखो, जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई इज प्रेशराइजेशन मोर क्रिटिकल फॉर ह्यूमंस इन आउटर स्पेस देन टेम्परेचर. So basically they are asking why pressure is more important than temperature in the outer space for humans. ठीक है, तो इसके लिए सॉरी हमने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिया है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. और इस एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके पढ़ना, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये सारा इस आर्टिकल से फ्रेम हो रहा है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखो यहाँ पे, इन गंगायान मिशन द गगन यात्रीज विल यूज सूट ऑफ विच कंट्री. Russia is the right answer. The third statements here are the pressure suits required only for the spacewalks and not during the launch or the landing. This is incorrect. In all 3 stages, we are using the pressure suits. Third article आप देखो, the State Election Commission, very important body. It's a constitutional body, first of all. अब इससे जो questions frame हुए आप देखो यहाँ पे. State Election Commission is responsible for the delimitation of all the assembly constituencies in the wards. It's a correct statement. Second statement says the State Election Commissioner is appointed by the governor or president. The answer is governor. The SEC is removed in a manner just like the judge of the High Court. This is a correct answer. The SEC use voter list prepared by the Election Commission or prepares its own list. You should know this that SEC neither add nor delete any names from the voter list. They use the list prepared by the Election Commission. They don't prepare their own list. The last question, how many members are specified in State Election Commission by the Constitution? अब अगर आप आर्टिकल देखोगे यहाँ पे State Election Commission का, तो it's only consisting of State Election Commissioner to be appointed by the governor, है ना. पर जब आप इलेक्शन कमीशन देखते हो तो इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द मेंबर्स प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स. तो इसके साथ एक कंडीशन भी है, पर स्टेट इलेक्शन कमीशन में ओनली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज देयर इज नो एडिशन ऑफ एनी मेंबर्स. अच्छा है. अब स्टेट इलेक्शन कमीशन के बाद, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. आर्टिकल से हम ऑर्गेनिक करंट अफेयर्स लर्न कर रहे हैं.
अब आप देखो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए का क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड इट सेज हियर अ वैक्सीन इज अवेलेबल टू प्रिवेंट द हेपेटाइटिस ए, येस और नो। अब अगर आप पैटर्न देख रहे हो यहाँ पे, तो हम आपको ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं। ये हम सेशन हर एवरी वीक वी डू दिस सेशन विद द स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा करने से आप टफ हो रहे हो, राइट? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टफ पेपर, द टफ क्वेश्चंस, द टफ स्टेटमेंट्स। पेपर फिर मुश्किल नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है, तो यहाँ आपका पेपर टफ हो जा रहा है आपको। अब देखो दूसरा जो स्टेटमेंट है कि हेपेटाइटिस ए जो है दैट इज नॉट मोर सीवियर, द बी एंड सी आर मोर सीवियर एंड दे कैन कॉज द क्रोनिक लिवर डिजीज, येस। थर्ड इज द हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दिस इज करेक्ट एंड दैट्स व्हाट द ऑल आर्टिकल अबाउट। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमने कवर किया दैट इज एनपीए में, और हमने पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि लोन बिकम्स एनपीए व्हेन इट इज मोर देन 90 डेज, यस दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि आरबीआई फ्रेम द नॉर्म्स एंड द डेफिनेशन फॉर द एनपीए, यस इट इज करेक्ट। द थर्ड इज कि क्या कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसीज एंड एमएसएमई फॉलो द सेम 90 डेज एनपीए नॉर्म, यस आंसर इज यस, एनबीएफसीज एंड एमएसपी फॉलो द सेम नॉर्म एज द कमर्शियल बैंक। और भी आर्टिकल्स हैं, आप देखो स्पॉन्ज फार्मिंग पे बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, और ये सारे स्टेटमेंट्स अगर आप देख रहे होगे ये आपके एग्जाम के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्पॉन्ज फार्मिंग के क्वेश्चन देखोगे तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल इज इनकरेक्ट, है ना, ये इनकरेक्ट है। बाकी 3 एप्लीकेशन है इसके, पर ये नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप इसमें देखोगे कि ये जो मरीन स्पॉन्जेस आर क्रूशियल फॉर द मेंटेनिंग द ग्लोबल न्यूट्रिएंट साइकिल, बिकॉज द थर्ड स्टेटमेंट, द लास्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बाकी 3 स्टेटमेंट। तो आप इस तरीके से लर्न करोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बिकॉज ये ना किसी मैगजीन में होता है और ना ही आप जो भी मैगजीन पढ़ते हो 365, 465, कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे और ये तरीका नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीका है, प्लस वी आर गिविंग यू द ब्यूटीफुल टेस्ट सीरीज, प्लस वी आर गिविंग यू द वीकली प्रीलिम्स प्रैक्टिस शीट्स, और फिर आपको मैगजीन भी दिया जाता है जो प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। तो माय एंटायर एकेडमी इज बेस्ड ऑन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद द प्रीलिम्स, देयर इज नो डाउट, प्लीज कम टू अस and learn and qualify your 26 examination. For any information, you can go to website, you can just contact us. Just try to clear prelims 26, okay? This is all I want. Thank you so much.